Dear student, today our topic is empirical formula and molecular formula. An empirical formula represents the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Present in a compound. ये हमें सबसे सिंपल रेशो बताता है कि किसी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के जो एटम है उनके बीच में जो रेशो है, नंबर ऑफ एटम्स के बीच में जो रेशो है वो कितना है. वेयर एज अ मोलिकुलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. किसी कंपाउंड में कितने प्रकार के एलिमेंट हैं और उनके एटम्स कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू को शो करता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ मेरे पास में मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है ग्लूकोज का C6H12O6. दिस इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और वी कैन से दैट दिस इज़ द कंपाउंड. इफ I say that the molecular formula of glucose shows the exact values. Here carbon atoms are present in this formula 6, hydrogen atom present in this formula 12, oxygen present in this formula 6. If this told about the exact number of different atoms present in compound and the ratio between number of atoms, the number of carbon atoms ratio, number of hydrogen and number of oxygen, that is a 6 12 6. Here in this formula 6 carbon, 12 oxygen and 6 oxygen presents. In empirical formula of glucose, this is the molecular formula and this is the empirical formula of glucose. This is empirical formula of glucose. Here carbon atoms are 1, hydrogen atoms are 2 and oxygen atoms are 1. The ratio between carbon, hydrogen and oxygen, the ratio when we calculate the ratio between different numbers of carbon, hydrogen and oxygen atoms, here in glucose molecular formula there are 6 carbon atoms present, 12 hydrogen atom present and 6 oxygen atom present, but they can be divided by 6 and they can produce simple ratio between their atoms. Here these ratio of numbers of atoms divided by 6, then we can get C1, H2 and O1. This is the simplest ratio between the carbon and hydrogen oxygen atom. This simplest ratio is called empirical formula. This is represented by this. I can say that there is a C, there is H and there is O. If I write down the number in the lower case, there is a C1, H2, O1. 1 does not represent, so this will be changed CH2O. This is the empirical formula of glucose. Empirical formula of glucose. Now we are to calculate the empirical formula and molecular formula when there is mass percent of given in a compound of all atoms. The mass percentage are given, or their composition are given in percent, mass percent. Then we have to calculate empirical formula and molecular formula. For this we have to solve a problem, then and only then we can calculate the empirical formula and molecular formula. For this, problem 1.2 is taken. A compound contains
4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.6% chlorine. Its molecular mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formulas? तो हमें इस प्रॉब्लम में हमें ये बताया गया है कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4.7% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। अगर इसका आपको मोलर मास या मोलिकुलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम, तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के कुछ स्टेप है, सबसे पहले उन स्टेप को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम 1.2 को। तो इसका पहला जो स्टेप होगा वो है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। तो हम पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मास परसेंट को कैसे करेंगे? वी हैव टू सपोज दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। Suppose we have 100 gram of compound. If we have 100 gram of compound, then the hydrogen value is given 4.07%. कार्बन दिया हुआ है हमें 24.27% and chlorine is given 71.65%. So we have to convert them in gram. 4.07 by 100 into 100 करोगे तो हमारे पास में सीधा ही लिख रहे हैं हम 4.07 ग्राम। परसेंट चेंजेस टू ग्राम 24.27 ग्राम एंड क्लोरीन इज 71.65 ग्राम। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है जिसमें हमने मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। स्टेप सेकंड हमारा है कन्वर्ट इनटू मोल्स। एज यू नो दैट द मोल, अगर हमें किसी का मोल निकालना हो, मोल विल बी द वेट अपॉन मोलर मास। मोलिकुलर मास और अगर एटम दिया हुआ है तो W अपॉन एटॉमिक मास। इससे हम मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास हमें यहाँ दिया हुआ है 4.07। मैं सीधा ही कर रहा हूँ इसको, 4.07 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास में क्या है? 1.008। 1 भी ले सकते हैं हमारे पास में। तो ये हमारे पास में आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 4.04 मोल हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। और मोल ऑफ हम निकालेंगे सेकंड। मोल ऑफ कार्बन हमें दिया हुआ है। कार्बन का ग्राम में मास हमारे पास में कितना है? 24.27। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12.01 ग्राम। तब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये ग्राम है, ग्राम, ठीक है। जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2.021 मोल। थर्ड हमारे पास में है मोल ऑफ क्लोरीन। मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो मोल हमारे पास में क्लोरीन के ग्राम में वेट कितना है हमारे पास में? W कितना है? 71.65 ग्राम। लिखो तो लिखो, नहीं तो सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ग्राम लिख रहा हूँ, सभी में ग्राम लगा लो। और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको पता होगा 35.453 ग्राम होता है। लमसम 35.5 लिखते हैं अपने। तो ये आ जाएगा 2.021 मोल। 2 पॉइंट है बीच में, ये 2.021 मोल। ये हमारा सेकंड स्टेप यहीं ख़त्म होता है। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। नाउ
थर्ड स्टेप इज ऑल मोल्स ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल। तो आप यहाँ देखोगे हमने मोल निकाले हैं, इनमें से एक हमारे पास में क्वांटिटी आई है 4.04 मोल, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास में 2.021 मोल जो कार्बन का है, और थर्ड हमारे पास में वो भी क्या है 2.021 मोल। तो इन तीनों मोल्स की क्वांटिटी में जो सबसे छोटा मोल हमारे पास में, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, सबसे छोटा ये है, इसको सभी मोल के अंदर हमने डिवाइड करना है। पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे 4.04 मोल डिवाइडेड बाय 2.021, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 2.021 मोल डिवाइडेड बाय 2.021 मोल, इसी प्रकार इसको करेंगे। तो मैं यहाँ अब इनका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का हमने रेशो ऑफ मोल्स निकाला है। कैसे निकाला? हमने जो भी उसके मोल हमें मिले थे, ये देखो यहाँ पर हमें ये मोल मिला था 4.04 मोल, उसमें हमने सबसे छोटे मोल से इसको डिवाइड कर दिया। 4.04 में सबसे छोटा मोल कौन था? 2.021 मोल। इससे डिवाइड किया तो लमसम मेरे पास में 2 की वैल्यू आती है। नियर अबाउट होता है, उसको आपने नज़दीक वाले में इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो कार्बन है, कार्बन के भी मोल हमारे पास 2.021 था, और सबसे छोटा जो मोल है वो भी 2.021 है। इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 1 आएगी। अब थर्ड हमारे पास में इसमें Cl था। Cl के जो मोल्स थे वो हमारे पास में थे 2.021, और इसको हमने डिवाइड किया सबसे छोटे मोल 2.021 से, तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास में आती है वो आती है 1। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है फोर्थ, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। जो वैल्यू हमें एलिमेंट के मोल में सबसे छोटे मोल से डिवाइड करने पर जो हमें वैल्यू मिली थी, वो वैल्यू हम उन एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कार्बन है, मेरे पास में हाइड्रोजन है, मेरे पास में कार्बन है, और मेरे पास में Cl है। तो हाइड्रोजन की जो मोल वैल्यू हमें मिली थी वो मोल वैल्यू हमारे पास में आई थी 2, कार्बन की आई थी 1, और क्लोरीन की भी 1 आई थी। तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी। कार्बन की मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी 1, Cl की मेरे पास कितनी आई थी 1। अगर मैं ये फॉर्मूला कंपोजिट रूप में इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ CH2Cl। दिस इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। तो मेरे को जो कंपाउंड दिया था उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास में आ गया है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप है राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें सबसे पहले ज़रूरत है एम्पिरिकल मास की। जिस प्रकार हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी प्रकार से हम एम्पिरिकल मास निकालते हैं। एम्पिरिकल मास का मीन क्या है? सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फार्मूला। जितना एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला है उस एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जितने एटम हैं उनके एटॉमिक मास का जो हम सम निकालेंगे वही उसका एम्पिरिकल मास बन जाएगा। तो मैं यह कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास में था CH2Cl। कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है, हमने लिया था 12.01। हाइड्रोजन का हमने लिया था 1.008 और Cl का हमने लिया था 35.45 के लमसम था। क्लियर है? अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 1 Cl, इतने एटम है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास मेरे पास में था 12.01
प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मेरे पास में 1.08 एटॉमिक मास है, प्लस Cl का 35.45 मैंने माना है, और माना क्या पहले भी हमने लिया है, 453 है। कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 2, ये 2 क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1.08, तो 2 का होगा 2 इंटू 1.008 प्लस 35.453 जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है। जब हम इनका सम करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास जो आती है, ये वैल्यू आती है 49.48 ग्राम, 49.48 ग्राम। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया एम्पिरिकल मास। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसका एम्पिरिकल मास निकाला है, क्यों एम्पिरिकल मास के बिना हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते। कैसे निकाला दोबारा देख लें। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास में था CH2Cl, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.01, हाइड्रोजन का 1.008, क्लोरीन का 35.453 है। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl था, जिसमें कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोरीन के 1 एटम है। इनका जो एटॉमिक मास है कार्बन का हमने रख दिया, हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्लोरीन का 1 एटम था तो हमने इसके 1 एटम की एटॉमिक मास की वैल्यू रख दी। इनका सम किया तो मेरे पास में जो सम आया वो आया 49.48 ग्राम, दैट इज़ द एम्पिरिकल मास। क्लियर। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे हमारे पास में आता है, वो सेकंड नंबर पे हमारे पास में जो आएगा वो है n। हमें एक वैल्यू निकालनी है n। n इज़ अ नंबर, कोई नंबर है तो नंबर किस प्रकार हम निकालते हैं, हाउ वी ड्राइव द n नंबर। जो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूलर मास में अगर एम्पिरिकल मास का हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास में एक नंबर होता है। वो नंबर एक इंटीजर हो सकता है। तो हमें जो मोलर मास दिया हुआ है, हमें जो मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है हमारे पास में 98.96 ग्राम। और एम्पिरिकल फार्मूला से हमने एम्पिरिकल मास निकाला था, वो था हमारे पास में 49.48 ग्राम। n हमने निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो मोलर मास मेरे पास क्या है 98.96 डिवाइडेड बाय 49.48 ग्राम। जब मैं इससे काटता हूँ तो ये 2 पे कट जाता है, तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, 2 वैल्यू आ जाती है। उसके बाद में हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में ऊपर n की वैल्यू आई थी, n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ 2 आई थी, तो n को हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एम्पिरिकल फार्मूला को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला आया था वो कितना था, एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, ऊपर अपनों ने निकाला था, याद करो, ये आया था एम्पिरिकल फार्मूला। मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, CH2Cl। अब मैंने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे निकालूंगा मैं, n इंटू CH2Cl करूँगा। n की वैल्यू मेरे पास में क्या है, 2 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा क्या बन जाएगा, 2 इंटू CH2Cl। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C के पैरों में कितना है, 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। H मेरे पास में कितना है, 2, 2 2 जा 4, और Cl मेरे पास में कितना है, 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा C2H4Cl2, C2H4Cl2। ये मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये मेरा आंसर होगा। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ से हमारा होता है, जब हमें कोई परसेंट ऑफ मास दिया होता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना। जितने परसेंट दे रखे होते हैं उनको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें मास दिया होता है उस मास को हम
स्टेप सेकंड में हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिया, जो हमारे पास में मास आया था, वेट आया था, वेट को हमने मोलिकुलर मास से डिवाइड किया तो हमारे पास में इस तरह की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद में थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, सभी जितनी भी मोल की वैल्यू हमारे पास आई थी उनको सबसे छोटे मोल से डिवाइड कर दिया था। और सबसे छोटे मोल से डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आई थी, मोल्स को मोल्स से डिवाइड करने पर जो हमारे पास में नंबर्स आए थे, वो नंबर हमने क्या किए, जो हमारे पास में एटम थे उन एटम के सब्सक्रिप्शन में लिख दिए, नीचे उसके पैरों में हमने वो नंबर लिख दिए। तो हमारे पास में एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला को जब मोलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम एम्पिरिकल मास निकालते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास को हम सम कर देते हैं। दूसरे के अंदर हम एन वैल्यू निकालते हैं। एन वैल्यू होती है मोलिकुलर, जो आपको मास दिया हुआ है उसमें एम्पिरिकल मास को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, वो हमारे पास में उसको हम बोलेंगे एन नंबर। थर्ड के अंदर हमने मोलिकुलर फार्मूला निकालना होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द एम्पिरिकल फार्मूला विद एन। फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो एन आया था, वो यहाँ पर एन आया था हमारे पास में 2, हमने उसको उसके एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया। तो 2 को जब CH2Cl से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में C2H4Cl2 फार्मूला आया, जो एक मोलिकुलर फार्मूला था। थैंक यू।